just message Pankaj also to join. सर पंकज है ना थोड़ा मार्केट तक गए हैं, तो आप कंटिन्यू करो, उन्होंने मुझे बोला। Okay, 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 okay. So my screen, I just share the screen. So, Swati or Surbhi, uh, do you understand the Reliance policy for Jio? सर जियो जहाँ जहाँ जब वो स्टार्ट हुआ था, तब जियो का ये था रिलायंस का कि हमें कस्टमर्स क्रिएट करना है, कस्टमर्स बनाना है। सो उस टाइम पे आई थिंक जियो ने सबसे पहले जियो की सिम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी थी, Mm-hmm. राइट। सो इट्स अ कस्टमर बॉन्डिंग क्रिएट करना, राइट। तो वो सबसे पहले उन्होंने वो करा। उसके बाद जब अच्छे कस्टमर और वो हो गया, तो तब उन्होंने अपने प्लान्स स्टार्ट करे, Okay. लाइक यस, कंपेयर टू वोडाफोन और एयरटेल कंपैरिजन इन cheaper rate and good networking. Actually, So I just want to share an article where I would be talking about the strategy of Reliance. Okay, so what we look at the company in terms of for us, it's a telecom company, but it is not a telecom company. They have a very big plans, and they are trying to do something which nobody was successful so far in that strategy. But the best part of this exercise or the strategy is that they are trying to do it or achieve what others would not able to achieve with a different angle. okay. So see, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू लुक एट योर मोबाइल, I mean, whatever mobile, iPhone or Samsung or any mobile you look at it, can you figure out how many players are involved in this mobile services? Swati or Surbi, anyone. I mean, for once you just operate a mobile like this, the one I'm just showing you, can you think of how many players are contributing to this mobile in terms of somebody has manufactured it, somebody has Yes. provided an operating system to it, Operating system. right? Processor Somebody is is different. providing services, mobile Yes. services, right? So can you think of, I mean, how many players are involved in this? 3, 4, 5, whatever you can think of. I think Sir, there three, maybe one is who is manufacturing it, the other who is providing the operating system, and the processor. Third one is the processor that is being used. Mm-hmm. So I guess three maybe. Like if Android, if in case of Android phones, smartphones, we have Android of Google, right?
we have and manufactured by maybe Samsung, HTC, Vivo, or whatever. And we have processor as well. So maybe 3 players would be there. 3 players. What I think, like what I feel. And what about the ones who are giving apps? Yeah, exactly. Yeah. One Right. is one. See, there are at least 4 players. Right. That's what I just want to talk about here. Just look at this article. This is 4-level consumer tech stack. So it's related to Geo. It's an article which actually one thing I just want to again reiterate. Nowadays we are moving towards a subscription model. So if you want to really know or get knowledge, then you have to subscribe good, subscription based products which are providing good level of research. So this article is, there is a Ken is the Ken is one subscription which gives you detailed articles, and this was one of the beautiful articles which tells about Reliance strategy. What I want you to showcase or emphasize on when I am talking about this article is how research is done. Research is not only collating information, but how beautifully they have explained it in terms of what Reliance is trying to achieve with his strategy of becoming a major player of telecom in Indian telecom sector. So this is actually all very nice. I don't think anybody has fully understood the sheer audacity and extent of Jio strategy, what it has attempted to pull out. आप समझ रहे हैं ये जो बात हम करने जा रहे हैं, Reliance Jio has changed everything. When we look at Reliance Jio, we just look at that they are the disruptors. They just come into the market. Uh, Anil Ambani started Reliance, Reliance Communication, and they distributed handsets with 500 rupees. This guy, without handset, he actually distributed free of cost SIM, gave services for free for at least an year, and then they actually launched their own services. What they are doing, that is what we need to understand. Reliance Jio is not only telecom service. सिर्फ फोन पे बात करना ही is not the only motive. So now there are 4 levels. This tech stack समझते हैं ना, एक के ऊपर एक, Right. Yes. Yes. right? So now if you just look at, these are the 4 stacks of a telecom environment. Where it is lying, it is just a player, right? Yes. What we see, we see just these are the telecom stack. There are, anyone can be part of this, part of these 4 stacks, but nobody was successful as a player having presence in all these stacks. That is the strategy which everybody wanted to be, but could not succeed in, because of one or the other reasons. We will talk about that later. But if you have to understand a telecom space, then these are the 4 layers or stacks of players who provide services through a mobile phone. Do you agree with me about this? Yes, sir. Right? Yes, sir. With phone, the basic service which we are actually using is what? The telecom services. कौन प्रोवाइड कर रहा है? एयरटेल, वोडाफोन, जियो. हमारे लिए तो जियो जो है वो एक टेलीकॉम ऑपरेटर ही है. Yes. और हम उससे आगे उसको देख भी नहीं पाते. Yes. जियो टीवी भी है, और जियो माई जियो करके एक ऐप भी है. Yes. Yes. राइट? तो जियो ने क्या ट्राई किया?
जियो जो है, एक्चुअली जियो क्या चाहता है, जियो चाहता है कि वो इन सारे स्पेस में प्रेजेंट रहे, जिससे क्या होगा, उसका फोन होगा, उसकी ही फ्लैट ऐप, वर्किंग। उसका ही ऑपरेटिंग Absolutely. सिस्टम होगा, Right. ठीक है, और उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का डिवाइस होगा। इसीलिए जियो ने अभी 4G का फोन लॉन्च किया है। यस Yes, तो sir. ये चाहते हैं कि डिवाइस भी उसका हो, तो डिवाइस में जो कनेक्शन होगा वो किसका होगा, मेरा होगा, Jio. राइट। मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं जिससे कि इंटरनेट का जो यूजेज मैं करूं वो भी मैं ही कंज्यूम करूं, यस और मैं जियो प्लेटफॉर्म पे जो मैंने जियो सिनेमा, जियो अदर सर्विसेज My दी Jio. हुई है, Hmm. वो भी सब मेरा ही हो, जियो मार्ट भी यस है ना। तो जियो जो ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो अपने इस तरह से अपने आप चारों के चारों पैरामीटर, चारों के चारों लेयर्स में हो, और कंपनी एक है, चारों लेयर्स उसके खुद के हों। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब उसके पीछे रीजन क्या है, टेलीकॉम प्राइसिंग के लिए आप जियो, इवेंचुअली तो कॉलिंग तो फ्री यस है ना, तो यहां तो पैसे बन ही नहीं रहे, Hmm. यहाँ कोई पैसा बना ही नहीं रहा। एयरटेल है, एयरटेल का कभी कॉल रेट होता था 1 रुपी 20 पैसा, अब मैं वो बात नहीं करूंगा जब बहुत बड़े रेट होते थे, पर आज की डेट में तो 1 पैसा पर मिनट भी पे नहीं कर रहे हैं। यस इवेंचुअली ऑपरेटर को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा ना, Hmm. ऑपरेटर तो बेचारा मरा ही हुआ है। अब रही बात जहां तक डिवाइस की, एयरटेल तो कोई डिवाइस लेकर आया नहीं, यस तो ये चाहते हैं कि अगर मेरा डिवाइस होगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो मैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के तरीके से सारा पैसा जो है मैं अपने आप ही कमाऊंगा। अगर ये चारों सर्विसेज, अगर मैंने मान लो मोबाइल मेरा हो गया, मोबाइल मेरा हुआ, तो मेरा ही ऑपरेटर हूं मैं, राइट। Hmm. आप समझ रहे हैं, ये दोनों सर्विसेज कंबाइन हो जाएं तो जो यहाँ पर मैं कुछ कमा नहीं रहा, पर यहाँ मैं कुछ कमाऊंगा, तो ये दोनों मेरे लिए होंगे। Right. अगर हर फोन को बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। Haan. अब अगर मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर से खरीदना पड़ेगा तो उसका मार्जिन होगा, Hmm. तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना बना लूंगा, तो मेरा फोन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा हो गया, मेरी सर्विसेज होंगी, तो तीनों में मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा, यहाँ इन तीनों का मार्जिन, कमाई एक किसी सर्विस में रहने से तो ज्यादा ही होगी ना। Haan. यस ठीक, अब जिस तरह से नेटफ्लिक्स है, पेटीएम है, इस तरह से रिलायंस ने बहुत सारी एप्स निकाल रखी हैं। तो रिलायंस जियो मार्ट हो गया, रिलायंस का टीवी जियो टीवी हो गया, ये सारी सर्विसेज भी हैं। अब एक बात बताओ, अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम वीडियो पे सभी वीडियोस देखते हैं Yes, sir. ऑलमोस्ट, और अगर वो लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, अगर साल का वो 999 चार्ज कर रहे हैं, राइट। Hmm. तो अगर इस तरह से वो ये सारी चीजें कंबाइन कर लेगा, तो एक आदमी अगर सब कुछ बनाएगा, तो शायद उसकी कॉस्टिंग कंपेयर टू अलग अलग लोगों से लेने से तो बेटर ही होगी। अब आप अगर रिलायंस का जियो जो इनका सेट टॉप बॉक्स है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एप्स हैं, नेटफ्लिक्स अलग से लेना पड़ता है आपको, अलग से अमेजोन का Amazon प्राइम Prime, वीडियो, right. और बहुत सारे वो लेने पड़ते हैं, तो वो किसी को पैसे दे रहा है ना। यस नेटफ्लिक्स को अपने प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए रिलायंस कुछ पैसे दे रहा होगा। Hmm. अब वो अगर इसका कंपटीशन अपने आप निकाल दे, और जब उसके टेलीकॉम सर्विसेज पे आप देखना, जियो अगर जैसे ही रिलायंस जियो करते हो तो सारी ऐप अपने आप आ जाती हैं। यस तो सर अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी ही बनाई हुई चारों सर्विसेज को यूज करेंगे, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस सर बढ़ेगी बढ़ेगी. ठीक है। तो ये एक आदमी जो है, एयरटेल क्या कर रहा है, सिर्फ ये फोन बेच रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एयरटेल का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिवाइस अलग से खरीदना पड़ता है, आप फोन कहीं और से लेते हो, सिस्टम कोई और होता है, और उसके ऊपर जो ऐप चलती हैं वो App. अलग होती है, राइट। पर जियो जो है अब ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये कह रहे हैं दिस इज अ ग्रेट प्लान, बट देयर आर परफेक्टली गुड रीजंस व्हाई इलेक्ट्रिक
electric companies doesn't, despite all their obvious advantage of being a monopoly and owning a very valuable part of the chain, electricity remains electric company. Electricity is a utility, and just because you supply electricity, that doesn't mean that you can magically make light bulbs that perform better than anyone else on your electricity. बात समझ में आई? ये लाइन ये कहना चाहती है कि अगर एक कंपनी जो बिजली बनाती है और वो बल्ब बनाने लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो वाला बल्ब उसकी इलेक्ट्रिसिटी पे अच्छी रोशनी देगा और बाकियों पे नहीं देगा, नहीं है ना? तो इसीलिए not only do you provide something as a valuable electricity, but you have the privilege of competing with other players. अब क्योंकि बिजली बनाने वाली कंपनी तो बिजली बना के दे देती है, उसके बाद आप बिजली को टीवी में यूज करो या कहीं यूज करो, पर उसके लिए तो बिजली है। अब अगर बिजली की कंपनी ये सोच ले कि भैया नहीं, मैं तो एक काम करूंगी, मैं तो सारे ही प्रोडक्ट भी बनाना शुरू करूंगी जहां जहां बिजली यूज होती है, तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट, ऑन द फेस ऑफ इट, राइट? So why do telecom company with all their might and power mostly remain telecom companies? ज्यादातर कंपनियां जो मोबाइल ऑपरेशंस में है, वो कंपनियां सिर्फ टेलीकॉम सर्विस क्यों रह जाती हैं? सो ये प्लेटफॉर्म है जो अगर मोबाइल पे देखोगे तो ये चारों प्लेयर जो हैं अलग अलग तरीके से आते हैं और वो कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट है। अब ये इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर एक कंपनी है तो एट द हाईएस्ट लेवल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दीज आर द एप्स, दैट 7-minute वर्कआउट ऐप विच आई विल मूव टू जस्ट लास्ट इन। जो लोग हाईएस्ट लेवल पे हैं वो सबसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं, ठीक है? वन लेवल बिलो, दिस एक्चुअली इज एक्सप्लेनिंग, so these are the parameters, but up now higher you are in the stack, the better. This is pretty evident. Think about most valuable companies in the world: Facebook, WhatsApp, Instagram, consumer application Google, Map, consumer application Netflix, Uber, Paytm, Vio, this, ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं कहाँ की हैं? ये यहाँ पर हैं, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं, राइट? और इनकी अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो Amazon, Google और आपका Netflix, अगर मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊं तो अब अल्टीमेटली रिलायंस कैसे पैसा बनाएगा? कंपनी बिजनेस करती है जब उसके स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, है ना? $1.88 ट्रिलियन, 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे, अगर किसी इंसान ने 700, आज की रेट में 3000, कितना रिटर्न हो गया 3 साल में? समझ रहे हैं बात को? एक्चुअल में ये आर्टिकल ये बताना चाहता है कि जो जितना हायर लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उन कंपनीज के शेयर्स की जो वैल्यू है वो उतनी ही हायर है, राइट? मैं ये आर्टिकल आपको भेज दूंगा, बट मैं इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इसलिए रन थ्रू करना चाहता हूं क्योंकि ये सब चीजें हम जब एक एनालिस्ट की तरह देखते हैं तो समझने में हमें टाइम लगता है, ठीक है? अब आ जाते हैं वन लेवल बिलो, एप्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, टिपिकली you know one of the two, iOS for Apple and other version of Android. जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट हर जगह है, माइक्रोसॉफ्ट हर जगह है ना, माइक्रोसॉफ्ट का ही तो सारा सिस्टम चल रहा है, विंडोज, उस तरह से मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम में है। अब मोबाइल में एप्पल के फोन पे तो कुछ और चलता नहीं है और एंड्रॉयड ने सारी मार्केट कैप्चर कर रखी है, तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं, तो जिनकी प्रेफरेंस है। अब रही बात, देन कम्स द डिवाइस में अगर आपका प्रीमियम नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते, और फाइनली बिलो एवरीथिंग इट इज स्टिल द, तो अल्टीमेटली
higher the you are into the stack, it is better. The more layers you own in stack, the better. आप समझ में आई बात कि Yes. अगर आप ज्यादा लेयर्स में होगे तो ज्यादा पैसा बनाओगे, Yes. Right. राइट? इट्स टेलीकॉम प्लेयर जो होते हैं वहां पैसा नहीं बन रहा, तो रिलायंस कोई पैसा तो बना ही नहीं रहा मोटा मोटा, ठीक है? सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय टेलकोस टू ब्रेक आउट ऑफ दिस फ्रॉम देयर स्टैंड ऑफ पॉइंट. 2 layers above are far too intimidating and enriched, so it is most cases telco have decided to skip them and jump to the consumer app layer directly, because higher you are up on the stack it is better. तो मतलब ये हुआ कि रिलायंस ने टेलीकॉम के साथ साथ सीधा सीधा इस लेवल पे चला गया ताकि क्या हो सके, पैसे बना सके. भाई ये वाली 2 लेयर तो अभी वो उसने डिवाइस बनाना शुरू किया है, ठीक है? तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में तो वो Sorry? है ही. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में तो वो है ही, हाँ, और टेलीकॉम भी है. वही मैं कह रहा हूँ कि टेलीकॉम प्लेयर में प्रॉब्लम, ये देखो ये आर्टिकल है, सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, द हायर अप यू आर ऑन द स्टैक द बेटर. तो जब आप हमें ये समझ में आया कि इन 4 लेयर्स में जो सबसे ऊपर है वो पैसे बना रहा है, कर कुछ नहीं रहे. नेटफ्लिक्स एक ऐप है जिसके अंदर आप डिफरेंट वो मूवीज बनवा देखते हैं, व्यूअरशिप बढ़ रही है तो उनके सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, राइट? अमेजोन में भी, प्राइम वीडियो में भी यही हो रहा है. तो लोग वहां उस प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है, टेलीकॉम कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता इस बात का. आप तो क्या है कि फोन खरीदोगे, फोन पे सर्विसेज बात करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा, इंटरनेट की वजह से पैसे मिल रहे हैं, पर इंटरनेट पे चल क्या रहा है, ऐप चल रही है. तो भाई अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ रिलायंस जियो यहां रह जाए तो उसको तो कुछ मिलना ही नहीं, राइट? और आज तक इस तरह की अटेम्प्ट बहुत हुई, पर क्या हुआ कि कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया. द प्रॉब्लम इज दैट हिस्टोरिकली दे हैजंट रियली वर्कड आउट. अब लोग क्या करते हैं, वेरेजोन है या एयरटेल है, एयरटेल ने विंक और हाइक खरीदी, तो मतलब क्या हुआ कि वो किसी तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनीज को खरीद लें, जिससे कि जैसे कि वेराइजोन ने याहू को खरीद लिया, एक टेलीकॉम प्लेयर ने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी को खरीद लिया, जिससे कि वो लोग सर्विसेज से जो या टेलीकॉम सर्विसेज से जो पैसा नहीं बन रहा, पर मैं ऐप से पैसा कमा सकूं. ठीक, तो अब हैं 4 लेयर. 4 लेयर में टेलको, डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस, यही 4 लोग आपको फोन के अंदर मिलते हैं. ठीक, तो अब क्या हुआ, अब इसके बाद अब जब कुछ लोगों ने डाउनवर्ड जाना शुरू किया, अमेजोन जो था उसने देखा कि भैया अमेजोन आ गया. अमेजोन का फायर स्टिक तो आपने सबने सुना होगा, यस सर, ठीक है? और फायर यूज भी किया होगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से डोंगल का ऐप ही है जिसमें आपके बहुत सारी वो चलती हैं, राइट? आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि अमेजोन ने फोन भी लॉन्च किया था फायर का, और किंडल करके भी एक ऐप आती है जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हो, राइट? तो जो भी लोग हैं वो कोशिश क्या कर रहे हैं, या तो ऊपर वाले स्टैक से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो मैक्सिमाइज कर सकें अपने प्रॉफिट को. समझ रहे हो ना बात को? अब पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं. देखो एयरटेल ने हाइक लिया था, then there is an Airtel which went ahead and backed a consumer app from scratch. Hike, it did well for a time, but not now. It's struggling after years of losses. तो एक्चुअल में क्या था, आप हो तो टेलीकॉम ऑपरेटर, पर आप कोशिश कर रहे हो कि आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी दो, तो वो आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे. कोई भी अभी तक ये चारों सर्विसेज एक साथ नहीं दे पाया, फेलियर्स हैं. अमेजोन ने फायर स्टिक बनाई, सिर्फ फायर स्टिक तो चलती है पर उतनी नहीं चलती जितनी कि क्या कहते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो चल रहा है. तो वो चाहते थे कि डिवाइस ले, लोग डिवाइस लेंगे तो जैसे टेलीफोन का बिल आता है वैसे उसका बिल आएगा,
और इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया था पर बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एयरटेल आईफोन तो चल गया, आईफोन में तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से आता है, वो बहुत अच्छा है, पर फायर स्टिक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट सिस्टम था। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन में लोगों ने पैसे लगाए, ये इन पैसों ने अभी तक कोई फायदा नहीं दिया इनको। यस सर। राइट, अब क्या हो रहा है ये देखो, ही हैज लॉन्च्ड अ फोन एज वेल, ऐसा नहीं है कि भाई ने फोन नहीं लॉन्च किया था पर चला नहीं। सी यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रैंड एम्बिशन लास्ट समर, फायर फोन वाइडली सीन एज अ फियास्को। आप समझे? तो Yes, sir. तो बेसिकली हर इंसान ने there's never been a successful example of a telecom going up the stack, or never been successful example of consumer app going all the way down to the stack. क्लियर? तो ये Right. अब आ जाते हैं, रिलायंस को देख लेते हैं। टेलीको बनाया सबसे पहले, उसके बाद जियो एप्स बनाए, Hmm. उसके बाद अब डिवाइस बना रहा है। Devices. Hmm. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसने गूगल के साथ हाथ मिला लिया Hmm. कि Android. एंड्रॉयड उसने क्या होगा कि अभी अगर आपने रीसेंट एनुअल जनरल मीटिंग देखी हो तो रिलायंस ने अभी फोन अनाउंस किया है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉयड का यूज करेगा, पर एंड्रॉयड की पार्टनरशिप है उसमें, तो जिससे कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर देना है, पर डिवाइस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का पैसा नहीं देना है। यस सर। आपने सिस्टम बनाने वाली कंपनी के साथ दोस्ती कर ली, अब क्या होगा, फायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। और फोन बनाने में कंपनी से इन्वेस्ट भी करा लिया, यस। तो समझे? और सिर्फ प्रॉफिट में शेयर देना होगा, प्रॉफिट का शेयर देना होगा। हाँ, तो हाँ। मोटा भाई ने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी इसकी ये करके उसने अपने आप को चारों सर्विसेज में ले आया। भाई आज की डेट में किसी से ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और का है, कल को कंपनी कह दे मैं तो नहीं देती तेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिवाइस खत्म। बिल्कुल। अगर डिवाइस खत्म तो ये भी खत्म, तो रह गए भाई वैसे के वैसे। टेलको, हाँ। तो मुकेश अंबानी ने सोचा कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, कल को कभी भी पंगा फंस सकता है, तो बेटर है कि मैं चारों चीजें एक साथ करूं, पर जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है मैं उसको बाहर से ले लेता हूं पार्टनर। तो ये एक स्मार्ट मूव हुआ, राइट? राइट। तो अब एटलीस्ट नॉट अंटिल द मोस्ट पावरफुल कंपनी इन इंडिया लेड बाय वन ऑफ द रिचेस्ट मैन वर्ल्ड डिसाइडेड टू टेक अ शॉट, तो इट डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एज ए टेलको। ये रिलायंस ने शुरू किया था टेलीफोन से, देन वेंट अप द स्टैक। तो सी, जब वो स्ट्रैटेजी समझने की, अगर किसी को ये समझ में आ जाता 2016 में कि रिलायंस जो है सिर्फ फोन कंपनी नहीं है, वो सारे काम करने जा रही है, तो क्या आप ये नहीं मानोगे कि आप देखो 2016 में 500 रुपए का शेयर आज 4 गुना हो गया। यस। यस सर। तो बेसिकली क्या है कि, और हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि सिर्फ एक टेलीकॉम ही कंपनी समझ में आ रही थी। गेम कितना बड़ा है, चारों स्टेजेस में उसको आने के लिए, और ये तो गेम का एक पार्ट है। अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे, द क्रेजी पार्ट इजंट व्हाट जियो डिड बट हाउ इट डिड इट, दैट इज व्हाट इट इज important. Back in 2016, I imagine there was a presentation showing Reliance offices with the following game plan. Biggest telco in India, crippling losses, kill or keep, kneecap all competitors. क्या किया? आया, मार्केट को डिसरप्ट किया और कहा कि या तो भाई तुम मर जाओ या फिर तुम अपने घुटने टेक दो, राइट? उसके बाद 17 में व्हाट दे डिड, बिल्ड अ फीचर फोन यूजिंग नॉन एंड्रॉइड, गिव इट अवे फॉर फ्री। भैया पहले आपने ये पता लगा लो कि किस तरह से नॉन फीचर फोन बनाया, और लोगों को वॉइस तो फ्री है ही, कर दिया। देन बिल्ड कंज्यूमर एप्स फॉर एवरी यूज केस, पेमेंट, चैट, कंटेंट। 2020 प्रॉफिटेबिलिटी, नन ऑफ
this feels new. Quite frankly, we have been talking about Reliance Jio for how now, a while now, and it feels like we are now in the end game. If you want some historical context, I'll recommend this. तो बेसिकली अब वो एंड गेम में है जो अचीव करना चाहते थे. देखो, इन्होंने फेसबुक से पैसे डलवाए, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया, इंडिया डिसाइडेड लॉन्ग बेटर, ठीक है, फाइनली केम टू एन एंड, कैंसिल, छोड़ देते हैं इन्वेस्टमेंट. फाइनली एज इन्वेस्टमेंट जियो बिकम स्टैम्पेड. सब ने इसमें पैसा डाल दिया. क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई जब सब चीज़ों पे कैप्चर हो जाएगा तो ऑब्वियसली अगर जियो के फ़ोन पे अगर फेसबुक की ऐप नहीं चलेगी तो क्या पता फेसबुक को नुकसान ही होगा ना, उसके सब्सक्राइबर्स कम हो सकते हैं. Right. आप ये समझो कि रिलायंस ने, जो रिलायंस का सिम यूज करेगा, अगर उसको कुछ बेनिफिट अलाउंस नहीं रही फेसबुक की, हाँ उसका जी, लॉस. अगर जैसे आपने बोला ना, जियो के जो सब्सक्राइबर्स है, जियो यूज कर रहे हैं जो, हाँ अगर उसपे फेसबुक ऐप यूज करने की परमिशन ही नहीं मिली तो कहीं ना कहीं लॉस तो होगा ना फेसबुक के उसके बिल्कुल सब्सक्राइबर्स को, बिल्कुल एग्जैक्टली. कम होंगे उसके सब्सक्राइबर्स. तो अब क्या हो रहा है, अब रिलायंस ट्राई कर रहा है अपनी प्रेजेंस हर सेक्शन में बनाए जिससे कि उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए. राइट. तो फिर क्या होगा, जो लोग रिलायंस, जिनको पैसे देता भी नहीं है, मतलब रिलायंस के फोन पे बाकी अगर लोगों को ऐप चलानी होगी तो रिलायंस को पैसे देने पड़ेंगे. जैसे कि गूगल को आपको ऐप चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही रिलायंस को पैसे मिलेंगे उसके फोन पर बाकी एप्स को चलाने के लिए. समझ रहे हो? एंड गेम जो इतना बड़ा गेम जिसको कि हम टेलीकॉम कंपनी समझ रहे हैं, अब इसके ऊपर 2 लेयर और हैं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अब इसने क्या किया, गूगल को बना लिया. गूगल से क्या मिलेगा उसे? इन 3 लेयर्स में गूगल से पैसा डलवा लिया, ठीक है, और फेसबुक से पैसा ले लिया. कहा भाई फेसबुक भी, तू भी पैसा किसको मिल रहा है? जियो को मिल रहा है, ठीक है. जियो सिर्फ अभी टेलीकॉम में थी, पर टेलीकॉम अपना हो गया, इन सब में पार्टनरशिप कर ली, तो इन तीनों में भी प्रेजेंस हो गई उसकी. नहीं. तो 4 तो बकेट हो ही गए, पर 4 के अलावा एक भाई और है जो सबका बाप है. समझ रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर ये सब कुछ चल रहा है, और इसको चलाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो कि क्वालकॉम था. तो इन सब ने रिलायंस में पैसे दिए. देखो, आज तक लोग ट्राई कर रहे थे ये 4 चीजें करने की, ठीक है, पर रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने किया, बिकॉज जियो वेंट बियॉन्ड दीज 4 लेयर्स टू अ लेयर अबव एंड टू अ लेयर बिलो. तो आप ये सोचो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिलायंस का होगा और टेक्नोलॉजी भी रिलायंस की होगी. So there's a reason why I didn't mention up these 2 layers, because nobody really goes far up and down. तो टेलीकॉम में कोई भी आदमी ज्यादातर इससे ऊपर इतना 4 स्टैक से ऊपर जाता ही नहीं. राइट. समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाई. अब ये देखो, ये जियो वेंट अबव टू द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर टू the part which provides web services that all consumer app uses, the cloud. And to do this, it partnered with Microsoft, the father of all. आपके लैपटॉप में विंडोज नहीं होगा ना तो चलेगा ही नहीं. Yes sir. ठीक है. This is an addition to Google, which has Google Cloud. These 2 companies control 20% of the cloud market. तो कोई भी एक ऐसा सेक्शन छोड़ा ही नहीं इस भाई ने कि जहां से कल को अगर हो सकता था माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ क्लैश होता तो उसको भी पार्टनर बना लिया. तो पॉइंट ये है कि आज तक बहुत सारी कंपनियों ने इन 4 स्टैक में रहने की कोशिश की, इन 4 स्टैक्स में, पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ.
प्रॉब्लम थी कि वो सब कुछ खुद करना चाहते थे, Right. पर रिलायंस जो है वो हर चीज जो एक्सपर्ट है उससे करवा रहा है। Hmm. और कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। अब अगर आज आप रिलायंस जियो को देखोगे तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये चीजें सक्सेसफुल हो गई तो स्टॉक की वैल्यू तो डबल हो सकती है, Hmm. Right. राइट? तो पॉइंट क्या है कि एज एन एनालिस्ट जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, अब अगर आप कंपनी को ट्रैक करते हो तो भी शायद इस तरह से कंपनी को देख पाना बड़ा मुश्किल है। Hmm. मतलब पॉइंट अगर आप मेरी बात समझो, कभी आपने सोचा था कि आप अगर एक मोबाइल जब चला रहे हो उस मोबाइल में ये 5 प्लेयर हैं जो Yes, आपको आकर सर्विसेज दे रहे हैं? भाई सिम जो बनाई हुई है वो क्वालाकॉम ने बनाई हुई है। Yes. Right. अगर बेस्ट सिम क्वालाकॉम बनाता है और अगर क्वालाकॉम की सिम रिलायंस यूज नहीं करेगा तो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। Hmm. तो उसने क्या किया कि एक्चुअली मेड टाई अप विद ऑल द लीडर्स। Yes. अब समझ में आ रहा है कितना बड़ा गेम हो गया। तो जियो ऑल्सो वेंट टू टेक्नोलॉजी लेयर बिलो where it has decided it want to build out the underlying equipment that powers and define 5G. I would like to link to a story that वो छोड़ देते हैं इस बारे में। पर अगर आप देखो ये है सिचुएशन। The vertical stack is now complete and it results into a landscape that looks like this. अब क्योंकि वैसे तो कुछ और स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं। 5G के लिए सबसे अच्छा हुवई था, उसको अमेरिका ने बैंड बजा दिया, तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि इंडिया कैन नॉट गो विद हुवई, तो इन्होंने क्वालाकॉम को ले लिया ताकि अगर 5G को में लीडर बनना होगा तो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ से मिल जाएगी। Yes. तो आप ये देखो कि माइक्रोसॉफ्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर लिया, अमेजॉन और एप्पल दोनों को यूज कर लिया। अगर देखा जाए तो गूगल और एप्पल दोनों तो कंपटीशन में है, Yes. पर फिर भी इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से इस पूरे स्टैक में जो बेस्ट जहां से मिल रहा था उसको यूज करके हर सर्विसेज वाले सेक्टर में अपनी प्रेजेंस बना ली। और ये बैकग्राउंड में हो रहा है। तो अब क्या है, अब बात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि इट रिमेन्स टू सीन हाउ दिस विल पैन आउट। Jio doesn't exactly own everything in the stack, but it has the next best thing, investment from everyone who matters in this stack. समझ में आया? Yes. Yes, sir. Investments from everyone who matters in the stack. उसने किसी को छोड़ा ही नहीं, Yes. कोई पंगा कर ही नहीं सकता, समझे? तो मेरा पॉइंट यहां पर जो समझना है, ये पैराग्राफ मैं दोबारा पढ़ूंगा, विच एक्चुअली सम्स इट ऑल। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ दिस विल पैन आउट। बस अब क्या है, इस स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल होने का तो कोई, ना सक्सेसफुल होने का कोई सवाल ही नहीं है। पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि ये सब एक बार के लिए अचीव हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। So, but for the next few years, maybe decades, Jio has changed everything. It has created a wall around an empire that stretches all the way from the top to bottom of the stack, effectively ensuring that you need to pay hefty tribute if you want to access these users. If you are in a consumer business and are hoping for scale and app distribution to figure out a business model like payment, OTT, ad tech, or if you are a smartphone manufacturer, I wish you lot of luck. You are going to need it. Okay. Oh, and if all this isn't enough, Mukesh Ambani, CEO of Reliance, even has a cricket Team.
वी आर ट्रूली इन द एंड गेम। अब कोई अगर फोन लेके आएगा तो उसको इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा भाई। अगर कोई भी प्लेयर होगा तो अगर टेलीकॉम सर्विसेज में होगा जो कि यहाँ पे होगा तो इन सब चीज़ों के लिए उसको अलग अलग पे करेगा, तो सब कुछ अरेंज करके इसके कंपटीशन में आने के लिए ऑब्वियसली सस्ता नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो? Right. तो अल्टीमेटली द स्टेज इज सेट। और अगर कोई ये सोचे कि टेलीकॉम गेम सिर्फ 4 स्टैक्स का है, अमेजोन तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे थे, वो भी अपने आप को यहीं तक लेकर आ पाए, फिर भी नहीं चले। इन्होंने भी कोशिश कर ली अपनी तरफ से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, नहीं हुआ। कोई सोचता तो क्या सोचता, यहाँ पर सोचता सब कुछ, पर इसने तो भाई ने इसके नीचे भी और इसके ऊपर वाला स्केल भी ले लिया। यस सर। हाँ जी, यस सर। तो अगर आप इस आर्टिकल को, मैं इस आर्टिकल को भेज दूंगा आपको, मेरे को, मैं साक्षी को भेजूं, किसको भेजूं जिससे आपको मिल जाए? हाँ सर, साक्षी को भेज दीजिए। मैं 1 मिनट देखूं ये चैट में अगर डाउनलोड होता हो तो मैं चैट में भेज देता हूँ अभी। ओके। अच्छा, ये मैसेज ही कर सकते हैं, हम नहीं भेज सकते। मैं ये आर्टिकल आपको साक्षी के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। तो अब अगर इफ यू लुक एट व्हाट वाज हैपनिंग, हम लोग तो ये बात समझ ही नहीं पाएंगे कि रिलायंस जियो करना क्या चाहता था। यस सर। तो जो लोग कवर करते हैं, ये आर्टिकल बहुत अच्छा था, मतलब मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसको संभाल के रख लिया। अगर किसी कंपनी को एनालाइज करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी तो समझनी पड़ेगी ना। यस। So that way it becomes really important to understand how different companies are playing the game. और ये अब कितना ही कोशिश कर लें वोडाफोन एयरटेल, अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो ऑब्वियसली रिलायंस का अपर हैंड रहेगा सर्विसेज में, उससे सस्ती सर्विस नहीं दे पाएगा कोई। यस। और इंडिया में तो अगर सस्ते में मिलेगा तो आदमी दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। तो है। तो मतलब एक्चुअली when somebody gave Mukesh Ambani an idea to launch a telecom company, he might have shown him this vision, right? और आप एक बात सोचो, 2016 से लेके आज तक 5 साल हो गए, 5 साल में रिलायंस ने अपनी उसी स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। कर तो अल्टीमेटली यही रहा है, पैसे तो पिछले साल ही आए हैं। हाँ सर। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे ये बात समझ में ना आती हो। ये तो कर ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 की 6 लेयर में है। तो लोग तो 4 लेयर की बात कर रहे थे, ये तो दोनों लेयर ऊपर नीचे भी इसने कवर कर ली। तो आने वाले 5 साल में अगर टेलीकॉम स्पेस में कोई ऐप, कोई मान लो कोई पैसे देगा, पेटीएम यूज करेगा, और अगर वो रिलायंस के फ़ोन पे होगा तो उसके साथ शेयरिंग एग्रीमेंट होगा। अगर जियो मार्ट पे कुछ खरीदेगा तो उसके साथ शेयरिंग होगा। तो रिलायंस को तो आपने पैसे देने ही आगे, वरना क्या था, ऑयल एंड गैस कंपनी थी, अब तेल 100 रुपए लीटर हो गया, आगे तेल लोग खरीद पाए ना खरीद पाए, पर ये सब तो करेंगे ही करेंगे। यस राइट। और इसने कोई बड़ा नाम छोड़ा नहीं, कोई इन सब में देख लो, ये अपने आप में एक ब्रांड है, ये अपने आप में, ये दोनों कंपटीशन में है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल कंपटीशन में है, पर दोनों को भी अपने साथ प्लेटफॉर्म पे ले आए। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वन शुड लुक एट अ बिजनेस। अगर आप व्हेन यू लुक एट द स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंड कि वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम, अगर वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाती है तो सोचो कि कितनी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं रिलायंस वाले। यस सर। एक तरीके से मोनोपोली ही क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगी। और अमेज़न को क्या मतलब है, पैसे कमाने हैं। अमेज़न ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली, माइक्रोसॉफ्ट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली, और
एक बात और, अगर कोई चीज 100 रुपए की बनती है, किसी को बेचोगे तो 120 रुपए की बेचोगे ना। 100 रुपए की चीज अगर 20 रुपए तो आपने वहीं बचा लिए, तो जो 20 रुपए प्रॉफिट में शेयर था वो 20 रुपए बढ़ जाएंगे। अगर अब भी 120 रुपए में भी कोई चीज होगी तो वो 10 रुपए रिलायंस के, 10 रुपए अगली के। Yes. तो मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी laid out in a very sophisticated manner and nobody can compare unless and until, जब तक मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा था आई wasn't sure कि रिलायंस सिर्फ इन 4 स्टैक्स में ही है। Yes, sir. तो बहुत ही डीप गेम है। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड दिस आर्टिकल। इसीलिए आप एक काम करो, किसी न किसी की सब्सक्रिप्शन ले लो। सबसे आसान सब्सक्रिप्शन है मनी कंट्रोल की। मनी कंट्रोल की सब्सक्रिप्शन 300-400 में मिल जाती है 1 साल के लिए, और उस सब्सक्रिप्शन में जो डिटेल्ड आर्टिकल्स आते हैं ना वो पढ़ो। जब आप डिटेल आर्टिकल पढ़ोगे तभी आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो। Okay, sir. ठीक है, बाकी इफ यू हैव एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू आस्क वी कैन डिस्कस दैट, अदरवाइज होपफुली दिस सेशन वुड हैव एक्चुअली मेड सम सेंस टू यू। Yes. और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब ना आपका जो टॉपिक आएंगे आगे, अब वैल्यूएशन के बाद आपको क्या चीज़ लिखनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, तो ये अगर आप इस लेवल पे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना चाहिए। अगर आप रिलायंस बन के सोचोगे तो क्या कर रहा हूँ और ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा। वरना आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसे पढ़ो। तो मेरे लिए तो रिलायंस जियो जो है वो एक कंपनी है, Yes, टेलीकॉम sir. कंपनी है। पैसे फोन के कोई देता नहीं। आप अगर कोई 399 रुपए का प्लान ले लो और 399 में भी फ्री कॉलिंग मिल रही है, और चाहे 1000 रुपीज का ले लो, पर वो एप्स ही तो हैं जिनकी वजह से वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं। अब अगर घर में ही ऐप बनाने लगूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर पैसे भी घर में ही आएंगे। Yes. देखो, ये देखो प्लान्स, जियो फाइबर कहाँ है? जियो 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 फोन, जियो फाइबर। जियो फाइबर 12, यहाँ 13। सिर्फ एक नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जो है उसके लिए 500 रुपए देने पड़ते हैं। Yes. राइट, और इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं, वॉइस बस स्पीड का ही चक्कर है। तो आप ये 12 ऐप जो ये दे रहा है, इसके लिए बाहर पैसे दे रहा है ना, कल को फिर आगे तो नहीं देना पड़ेगा ना भाई, बताएगा नहीं है नहीं मैं मेरे पास है जियो फाइबर है। तो पॉइंट जो है वो यही है कि आप जिन ये देखो, इन सबको पैसे तो रिलायंस दे ही रहा है ना, कल को इनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। Yes, sir. और जब पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मान लो अगर वो ये कौन सा भाई है, कोई एक भाई पकड़ लेते हैं, मान लो डिस्कवरी है। डिस्कवरी अगर रिलायंस के जियो के ऐप में आना चाहता है तो हो सकता है वो दे विल आल्सो स्टार्ट पेइंग कि भैया हमारी ऐप अपने उस पर चलाओ ताकि सब्सक्रिप्शन कुछ तो पैसे मिलेंगे। Yes, sir. तो बहुत ही डीपली थॉट प्रोसेस है और इट्स वेरी एनलाइटनिंग एज वेल। So that's why it is said that analysts are more smarter than the companies. रिलायंस तो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो आदमी इस इम्प्लीमेंटेशन को समझ जाएगा ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू टेक पोजीशंस वेल बिफोर रिलायंस गेट्स कंप्लीटिंग आई मीन execute this plan. Yes, sir. right. So this is what actually you should start looking at. Change your focus, start stepping into the shoes and change your thought process will help you. ठीक है जी? Yes. Anything else if you would like to ask? Otherwise I would like to end this session today with this thing. So you will share this article with Sakshi? Yeah, I'll now only I'll share, just share.
I'll immediately send this article to सर SURA भी अच्छा है. okay, this is right. Yes. जय लीजिए. ठीक है जी. हाँ जी सर. हाँ जी. तो थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, और जो मैंने ESG पे पंकज को बोला था, आप भी उसको ट्राई करो. I think this ESG is going to be a very highly required skill in the next 3 to 5 तो years. सर ये EC जो ECSG जो भी है, ESG, हाँ. ESG. तो इसपे मतलब कि क्या है, आर्टिकल मतलब कि एक तरीके का एक नॉलेज टॉपिक है. तो उस पे मतलब कि हमें क्या करना है, सीरीज वाइज किस तरीके से वर्क करना है. देखो ऐसा है, आप एक काम करो, यहाँ आ गए. पहले तो इस आर्टिकल को पढ़ लें. ओके. ठीक है. ठीक है. ये जब आप पढ़ लोगे तो आप इसके बाद एक काम करना, फिर यहाँ चले जाना. उस विकिपीडिया का सबसे अच्छा काम क्या होता है? समझे? References. इनमें जहाँ जहाँ आपको ठीक लगे पढ़ो और समझो. ठीक? क्लियर? यस Right. सर. हाँ. तो जैसे कि इंटेंजिबल मार्केट वैल्यू स्टडी क्या बोल रही है, क्या हो रहा है, यहाँ से रेफरेंसिंग ली है. फिर किस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये थोड़ा पढ़ो. पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा. ठीक है? जी सर. थोड़ा पढ़ो. मैं यही हूँ, ईमेल एड्रेस मैंने आपको दे दिया है. कोई भी बात हो यू कैन चेक विद मी, और नहीं तो साक्षी के थ्रू यू कैन सेंड मी. हम इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये एक अच्छा टॉपिक है, ये बहुत अपकमिंग टॉपिक है. ओके सर. Okay sir. ठीक है जी. चलो. ओके. विद दिस आई होप आई मेड सम सेंस टू यू. और Yes sir. बाकी फिर नेक्स्ट जब आपका सेकंड लेवल खत्म हो जाएगा तो फिर एक बार शायद मैं फिर आऊँगा. ओके सर. ठीक Okay है. ओके जी. हाँ जी. चलो. थैंक्स. Thank you sir. Thank you. टेक केयर. बाय. Bye.